Hello everyone, how are you? Today I am going to talk about class 11th biology chapter 1st, living world part 3. We discuss in part 1st and 2nd in previous video. Today we discuss about part 3. Part 3. We study or discuss to the taxonomic categories. There is the organism with their taxonomy category. These are the organism and with their taxonomy categories. Organism with their taxonomy categories. Like as this is the table, this is the common name, biological name, this is the genus, this is the family, this is the order, this is the class, this is the phylum. These is the taxonomic category, and this is the animals organism. This is the organism, plant and animal, both are man, housefly, mango, wheat. We classify the man, biological name Homo sapiens. Man have biological name Homo sapiens. Genus is the Homo. Family is the Hominidae. Order is the primates. And class is the Mammalia. And phylum is the Chordata. This is the classification of human being or man. Okay. Homo sapiens, common name man, biological name Homo sapiens, genus Homo, family Hominidae, order primates, genus Mammalia, phylum Chordata. Again we classify the housefly or taxonomic category, including the Musca domestica, housefly name in biological name, the Musca domestica. Genus is the Musca and family is the Muscidae, and order is the Diphthera, and class is the Insecta, and phylum is also the Arthropoda. These are the taxonomic category of the house fly. And again this is the plant, mango is the common name. This biological name is the Magnifera indica, and this genus is the Magnifera Anacardiaceae. Family is the Anacardiaceae. Family of mango is the Anacardiaceae. Sapindales, order is the Sapindales. This is the order of the Sapindales. And class is the Dicotyledones, and phylum is the Angiosperm. These are the taxonomic category of mango. And again we discuss about the taxonomic categories of wheat. Triticum sativum. This is the botanical name, and this have genus Triticum. Wheat have genus Triticum, and family is the Poaceae. Family is the Poaceae, and Poales. Order is the Poales, and class is the Monocotyledon.
and this phylum is the Angiosperm. So we can see here that phylum of human is equal to is Chordata, class Mammalia, order Primates, family Hominidae, genus Homo, and biological name Homo sapiens. So these are the taxonomic category organism which their taxonomy category. Again we discuss about taxonomy aids. Taxonomy aids means taxonomy सामग्री. Taxonomy aids means taxonomic सामग्री. कुछ ऐसे सामग्री taxonomy studies of various species, plant, animal and other organism are used in agriculture, forestry, industry and in general in knowledge our bio resources and healthy bio and their biodiversity. ध्यान दीजिए, ये टेक्सोनॉमी एड्स क्या है. टेक्सोनॉमी सामग्री मीन्स ये होता है वर्ग की सहायता साधन. वर्ग की जब हम कहेंगे तो उसमें कौन कौन से सहायक साधन होंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी एड्स. ये कौन कौन से हैं? जीवों को पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई, इफ वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड अदर, so we need a taxonomy aids. So these aids are the herbarium, botanical garden, museum, zoological park, key. These are the taxonomy aids. यानी कि वर्ग की सहायता साधन. ये वर्ग की सहायता साधन है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी के ये क्या है आपके एड्स यानी कि साधन है. वी डिस्कस अबाउट द हर्बेरियम. व्हाट इज द हर्बेरियम? हर्बेरियम क्या होता है? देखिए, हर्बेरियम मीन्स होता है कि हम किसी प्लांट को क्या करते हैं, पहले उसको एक बुक में रख देते हैं. रखने के बाद कुछ दिन तक रख देते हैं, वो ड्राई हो जाता है. जब वो ड्राई हो जाता है प्लांट, तो उस प्लांट को फिर पेस्ट कर देते हैं उसके पेपर पे. पेस्ट करने के बाद हम फाइल बना लेते हैं, और वही जो फाइल होता है वही आपका क्या होता है? हर्बेरियम होता है. वही आपकी क्या होती है? हर्बेरियम होती है. जैसा आप यहाँ देख सकते हैं हर्बेरियम, यहाँ डायग्राम में बनाया हुआ है. ये फाइल सब जो दिख रहे हैं आप लोग, ये हर्बेरियम का ही है. ये क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये टेक्सोनॉमी एड्स में जो हर्बेरियम है, इस हर्बेरियम में क्या किया जाता है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट को हम एक बुक में लेते हैं, बुक में लेकर के ड्राई कर लेते हैं. ड्राई करने के बाद उस पर पेस्ट कर देते हैं. पेस्ट करने के बाद उसका टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बने क्लासीफाई कर देते हैं, किसका जीनस क्या है, फाइलम क्या है. सब करने के बाद अपना उसको एक फाइल में एडजस्ट करके हम किसी भी जगह रख देते हैं. उसे हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम. वो क्या होता है? हर्बेरियम, जैसा कि आपको भी डायग्राम में हम दिखाएं. सेकेंड आपका है बॉटनिकल गार्डन. बॉटनिकल गार्डन के बारे में आप लोग जानते हैं. व्हाट इज द बॉटनिकल गार्डन? बॉटनिकल गार्डन एक गार्डन होता है जिसमें न्यू जो है प्लांट को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, और उस पर उसके फैमिली, आर्डर, जीनस, स्पीसीज सबके नाम पेस्ट किए रहते हैं. ये जो है बॉटनिकल गार्डन होता है. ये क्या होता है? बॉटनिकल गार्डन. इस तरह से हम लोग को क्लासिफिकेशन करने में प्लांट के जो है इजीली जो है ये होता है, हमको इजी होता है. ये बॉटनिकल गार्डन जो है हम लोगों के आपके कई जगह हैं, आप देख सकते हैं. बॉटनिकल जो गार्डन होते हैं, ये इंडिया में है. इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, ये हावड़ा में एक है, ठीक है. और आपका है बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड में. ये कहाँ है? इंग्लैंड में है. एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है? इंडिया में. तो ये बॉटनिकल गार्डन.
एंड देखते हैं म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? ये म्यूजियम जो होता है, ये म्यूजियम एक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए या देखने के लिए हम उसको प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व मीन्स ऐसे केमिकल्स में रखेंगे कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, और उसको हम एक कॉलेज में या कहीं पे कॉलेज में या स्कूल वगैरह में कलेक्ट करके रख देते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे, हम लोग आप लोगों के जो लैब है उस लैब में जो है रखे गए हैं। आप देखेंगे फाइल आके हैं, फिर इसके बाद और प्लांट के हैं, फिशेस हैं, है ना। ये सारे चीज़ आपको प्रिजर्व करके वहाँ पे कलेक्ट करके रखे गए। तो ये इंडस्ट्री कॉलेज वगैरह में ये सब रखा जाता है। ठीक है, अब अगेन देखते हैं म्यूजियम। ये क्लियर हुआ आपको। मैं म्यूजियम क्या है? म्यूजियम एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है, जिसमें ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके स्टोर किया जाता है ताकि उसको टेक्सोनॉमी कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करने में इजीली हमें हेल्प मिल सके। जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क आप लोग जानते हैं। व्हाट इज द जूलॉजिकल पार्क? जूलॉजिकल पार्क इज ए प्लेस इन विच वी कंजर्व द ऑर्गेनिज्म, है ना, आर प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म। ये एक प्लेस होता है, जगह होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। ये उसको क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी प्लांट और एनिमल्स को। एंड की। व्हाट इज द की? की, ये की इज द स्टडी मटेरियल है एक टाइप का, जिसमें टू जो है डिफरेंट पार्ट्स के एनिमल्स का जो है हम लोग आइडेंटिफाई करने का ये साधन होता है। क्या होता है? आइडेंटिफाई करने का साधन होता है। ये की इसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में। की इज एनादर टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये एक एनादर टेक्सोनॉमिकल एड्स है, सामग्री है, यानी कि ये टेक्सोनॉमिकल एड्स है। यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के आधार पर, ये सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के आधार पे हम क्या करते हैं? इस प्रोसेस से, यानी कि की से हम किसी प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, एंड यहाँ देख सकते हैं आप जूलॉजिकल पार्क। दीज आर प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड। वो एक प्लेस होता है जहाँ हम कंजर्व और प्रोटेक्ट करते हैं किसको? एनिमल्स को। और प्रोटेक्ट करेंगे और बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी वहाँ भी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी होगा तभी वो जू होगा, है ना। सो वहाँ टेक्सोनॉमी कैटेगरी को भी फॉलो किया जा सकता है, कैटेगरी को भी ये किया जाता है। आगे म्यूजियम। म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज। ये स्कूल एंड कॉलेज में इसका यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करते हैं, यानी कि परिरक्षित करते हैं, कई सालों तक उसको माने बिगड़ने न पाए, उसके लिए एक जो है लिक्विड में उसको डाल करके रखते हैं। ये हम लोग के लैब में है। आप लोग देखेंगे, जब लैब खुलेगी तो आप देखेंगे, उसमें हम आपको दिखाएंगे ये सारी चीज़। कौन कौन चीज़ आपको दिखाएंगे? म्यूजियम, ये म्यूजियम का पार्ट होता है ना। एंड अगेन बॉटनिकल गार्डन। दीज स्पेसीज specialized garden have collection of living plant for references। ये रेफरेंस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। कौन? गार्डन, बॉटनिकल गार्डन। जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं, मैंने बताया था, ये बॉटनिकल गार्डन ऐसे गार्डन होते हैं जहाँ पे प्लांट को ग्रो किया जाता है, और ग्रो करने के बाद उस स्पेसीज का जो है क्या करता है? नोमेनक्लेचर किया जाता है, यानी कि उसका नाम लिखा जाता है, ताकि
टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के लिए हमें बहुत ही हेल्प मिली, ठीक है। और हर्बेरियम को आपको बताया ही, क्या करते हैं कि वी टेक ए प्लांट, ए ग्रीन प्लांट, एंड वी ड्राई इट and they paste in paper and make a file. This is the museum. Sorry, this is the herbarium. This is the herbarium. And taxonomy, it means taxonomy सामग्री से, टेक्सोनॉमी यानी कि जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसकी ये सामग्री है। तो हम लोग के टेक्सोनॉमी एड्स क्या है, टेक्सोनॉमी सामग्री क्या क्या है, हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है, एंड की है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।